ओमान के साथ साहिल पर एक ऑयल टैंकर पर हमले में एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हुई है। ओमान की वजारत दिफा के एक बयान में कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने इतला दी है कि ऑयल टैंकर मस्कत के साहिल से 52 नॉटिकल मील दूर एक बगैर पायलट कश्ती ने उन पर हमला किया। इसमें कहा गया है कि हमले के नतीजे में इंजन रूम में आग लग गई और धमाका हुआ और हमले का एक रुकन हलाक हो गया। हमले के बाकी 21 अरकान को निकाल लिया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने पीर के रोज कहा है कि उसने ईरान और मशरिक़ वस्ता में फौजी हमलों के बाद रेडिएशन की सतह में कोई इजाफा नहीं देखा। ताहम एजेंसी ने खबरदार किया कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जौहरी एजेंसी ने मजीद कहा कि उसके पास अभी तक इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। Good morning, Mr. Chairman. All of us have been following with concern the military attacks in the Islamic Republic of Iran and in the Middle East. The agency immediately responded in accordance with our mandate by focusing on possible radiological emergencies derived from the military operations. The IAEA's Incident and Emergency Center is in operation, with a dedicated team collecting information and assessing the situation while bearing in mind limitations in communications caused by the situation. The Regional Safety Monitoring Network has been put on alert and is liaising with us continuously. So far, no elevation of radiation levels above the usual background levels has been detected in countries bordering Iran. Regarding the status of the nuclear installations in Iran, up to now, we have no indication that any of the nuclear installations, including the Bushehr nuclear power plant, the Tehran research reactor, or other nuclear fuel cycle facilities have been damaged. वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने के तर्जुमान फहद नासिर ने अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उस खबर की तरदीद की जिस पर दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने पर उकसाया। नासिर ने एक्स पर कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा ईरान के साथ सिफारती कोशिशों के जरिए मुआहिदा करने की हिमायत की है। उनका कहना था कि ट्रंप इंतजामिया के साथ राब्तों के दौरान उन पर कोई दूसरी पॉलिसी अपनाने के लिए दबाव नहीं डाला गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बीच फ्रांस ने कहा है कि खलीज में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा करेगा। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। dans ces pays partenaires. Et je remercie le ministre et les équipes d'avoir avancé sur la base des instructions d'hier et nous ferons le point détaillé pays par pays de la situation, à la fois pour protéger et pour pouvoir rapatrier dès que les espaces aériens seront rouverts. Ensuite, il y a la sécurité et la souveraineté de nos partenaires dans la région. Les Émirats arabes unis sont très loin les plus touchés, les plus exposés. Le Qatar est aussi très ciblé. Tous les autres pays de la région ont été frappés. Nous avons aux Émirats arabes unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne, qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures, que rien ne justifie. बीजिंग का कहना है कि वाशिंगटन ने ईरान पर हमले से कबल चीन को पेशगी इतला नहीं दी थी। उसने तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां रोकने और तनाव में कमी लाने का मुतालबा किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी और ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की इजाज़त के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू की, जो कि बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि लड़ाई पड़ोसी ममालिक को मुतासिर कर रही है, जिस पर चीन को गहरी तशवीश। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मगरबी बंगाल के आमटा में एक रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने
कहा कि मुल्क की दिफाई सलाहियतों का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान को खबरदार हम करते हैं कि आइंदा किसी किस्म की गलती को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और बहनों भाइयों उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार हिंदुस्तान और कनाडा ने पीर के रोज यूरेनियम और अहम मादनियात की फराहमी पर कलीदी मुआहदों पर मुहर लगा दी और जल्द ही एक जामे इक्तिसादी शराकतदारी का मुआहदा करने का अज़्म भी जाहिर किया, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी और कनाडा के हममनसब मार्क कार्नी ने 2030 तक दो तरफा सालाना तिजारत को $50 बिलियन तक ले जाने समेत ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक नए फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दी। अपनी वसी बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज़, छोटे और मॉड्यूल्स, तालीमी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने का अहद किया। तो वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई के उनको हदफ बनाकर टारगेट करने के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी कानून और खुद मुख्तारी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ उसे करार दिया। उन्होंने कहा कि जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किए बगैर किसी खुद मुख्तार रियासत की क़यादत को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए निहायत तशवीशनाक मिसाल है। अमेरिका इसराइल के साथ ईरान की जंग आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस दौरान हिंदुस्तान में भी सियासी और समाजी सतह पर घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को अपने दोस्त को कहना चाहिए कि बहुत हो चुका और इस जंग को रोका जाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है, तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। जमात उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने मशरिक़ वस्ता को धमाका खेज और तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी फिक्र व इज़्तिराब का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल के जारहाना और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात न सिर्फ खित्ते के अमन को तह व बाला कर दिया बल्कि आलमी इस्तेहकाम को भी संगीन खतरे से दो चार कर दिया है। आयतुल्लाह अली खamenei और उनके अहल खाना और रुफ़क़ा के जाँ बहक होने पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की क़यादत को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी उसूलों और मुआहिदों के खिलाफ है। कतर ने पीर के रोज़ कुदरती गैस LNG की पैदावार रोक दी है और मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस की तनसीबात को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने भी ड्रोन हमले के बाद अपनी सबसे बड़ी घरेलू ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया है। इसके असरात आलमी सतह पर नुमाया तौर पर देखे जा रहे हैं। खलीज ममालिक में ईरानी हमलों के बाद कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बंदरगाहों के ऑपरेशंस और मालियाती मंडियां बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। यह आलमी दबाव के बाद कारोबारी सरगर्मियों को पहुंचने वाला सबसे बड़ा धक्का तस्वुर किया जा रहा है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमेरिकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमेरिकी सेनेटर का यह बयान आया है। बर्नी ने ईरान को जौहरी हथियार तैयार करने से रोकने के ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए उन पर तनकीद की और कहा कि ट्रंप ने एक और झूठ बोला और एक नई जंग छेड़ गई।
बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। बरतानिया का भी एक अहम मौक़िफ़ इस पूरे मामले को लेकर अब सामने आया है। ईरान पर हमलों के दौरान बरतानिया ने अमेरिका को दिफाई मकसद के लिए अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान को खित्ते में हमले करने से रोकने के लिए फैसला किया गया है। Yesterday, I spoke to you about the situation in the Gulf and explained that the United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. That remains the case. Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region at countries who did not attack them. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. This is clearly a dangerous situation. We have at least 200,000 British citizens in the region, residents, families on holiday, and those in transit. I ask all our people in the region to please register your presence and follow Foreign Office travel advice. I know this is a deeply worrying time, and we will continue to do all we can to support you. Our armed forces, who are located. खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।